Hello, my friends and viewers. This is Kavita Sharma from Purely Electrical channel. Today, I have come up with another topic from Fundamentals of Electrical Engineering. The topic is effect of AC on pure L circuit. That means an electrical circuit which comprises of only a single inductor L, right, with a applied voltage V. So since this V is sinusoidal in nature, this is alternating voltage. The expression of alternating voltage will be given by V is equal to Vm sine of omega t. So what is this small v is? It is the instantaneous value of the voltage at any particular instant, which is equal to the maximum value that it has attained over a complete one cycle into sine of omega t, right? As the circuit is closed, a current I will start flowing through it. So as the current flows through this inductor L, an EMF will be induced in the inductor L, right? And that will be given by small e, that is equal to minus of L di by dt, right? And also this induced EMF is equal and opposite to the applied voltage because of Lenz's law, right? So हम लिख सकते हैं small v is equal to minus of E. Substituting the value of E over here, we get V is equal to L di by dt. सो यहाँ से अब हमने निकालना है करंट का एक्सप्रेशन. टू फाइंड दैट करंट का एक्सप्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा? लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल v ओवर हियर. Vm साइन ऑफ ओमेगा टी दैट विल बी इक्वल टू L di by dt, राइट. अब हमने क्या करना है? करंट को एक तरफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे. सो वी गेट di इज इक्वल टू Vm divided by L sin of omega t dt. So what is this Vm and L? These are the constant values. Vm भी constant है, L भी constant है. So to find I, we'll have to integrate both sides. दोनों sides पे हमें integrate करना पड़ेगा. Integrating both sides, we get I is equal to Vm by L. Since both the terms are constant, तो ये integral से बाहर आ जाती है. Integral of sin of omega t dt. So integral of sin theta is always equal to minus of cos theta. तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट Vm बाय ओमेगा L इज इनटू माइनस ऑफ cos omega t, right? Again as the expression of the voltage is in sin term, so हमारे पास करंट का भी क्या आना चाहिए? साइन की फॉर्म में आना चाहिए. So we can convert this cos omega t into sin, that is cos of theta मतलब माइनस ऑफ cos theta is always equal to sin theta minus pi by 2. We can write it as I is equal to Vm by omega L into sine of omega t minus pi by 2, right? So this is the expression for current in purely inductor circuit, right, which is having only a single inductor. अब हमारे पास current और voltage का expression आ गया हमारे पास. And after correlating these two terms, दो इक्वेशंस को अगर हम कोरिलेट करते हैं, वी गॉट टू नो दैट आई इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एग्जैक्टली पाई बाय 2 और 90 डिग्री, राइट. ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है. कैसे? देखो आई वी Vm Im. So since these two terms are also constant, Vm भी constant है, L भी constant है, and omega is angular frequency, that is also constant, 2 into pi into f. फ्रिक्वेंसी भी हमारी कांस्टेंट होगी जब भी हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे. तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट आ गई. तो कांस्टेंट एंड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट. अब हम इस कांस्टेंट टर्म को हम एक नया नाम दे देते हैं. सिंस द टर्म इज इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, तो हमारे पास जो इसको हमने लिख लिया इसको इक्वल टू करंट, ठीक है. अगर हम इसको करंट लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज आई एम. सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. अब एक्सप्रेशन मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन ये वाला है और वोल्टेज का एक्सप्रेशन था वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी. सो अब जब हम इनको कोरिलेट करते हैं, we'll get to know that current I is lagging behind the voltage by exactly 90 डिग्री. माइनस पाई बाय 2 इसके साथ लग गया ना. तो हम यहाँ से बना सकते हैं, अगर मैं इसकी वेव शेप बनाऊँ तो जब मेरे पास जो वोल्टेज है जो वो पाई बाय 2 एंगल पहले ही क्रॉस कर चुकी है, तब मेरे पास करंट की वेव शेप स्टार्ट होगी, राइट. इसका मतलब ये है. तो करंट की वेव शेप ये वाली मैंने ड्रॉ कर ली. अब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी जब ये 180 डिग्री पे होगा, राइट, और इसका ये 90 डिग्री होगा, राइट. अब मेरे पास एक करंट जो है ऐसे ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम रहने वाली है तो उसी फ्रिक्वेंसी पे मेरे पास करंट भी फ्लो करेगा. अब यहाँ से हमने शो कर लिया, दिखा लिया कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है. अभी जो कांस्टेंट टर्म थी जिसको कि हमने आई एम लिखा था, दैट इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल. सो वी कैन राइट इट एज एक्स एल, सॉरी
वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। ठीक है, अब ये एक्सएल क्या है? इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन सी टर्म आ गई? इट इज अगेन एन ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये भी इसको रेजिस्ट कर रहा है करंट को अपने थ्रू फ्लो करने से। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस अपने थ्रू करंट फ्लो करने से ओपोज करता है, राइट? तो दैट इज गिवन बाय XL is equal to L into omega, where omega is 2 pi f. अब हमारे पास inductive reactance, this is the term inductive reactance. This inductive reactance is the opposition offered by the inductor L to the current flowing through it, right? Alternating current flowing through it. So it will be given by 2 pi FL. ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास एक नई टर्म आ गई एक्सएल, ये हमने सीख लिया। अब हमने करना क्या है? हमने अब पावर निकालनी है इस सर्किट में। सो इंस्टेंटेनियस पावर, अब पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल आई। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ, एक हमने डिराइव की है, वोल्टेज की हमारे पास थी ऑलरेडी। दोनों जब हम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट टू नो p इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट? अब साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, राइट? अगेन यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली। वो क्या बनती है कि साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाती हूँ तो मेरे पास डिवाइड में 2 आ जाएगा और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आ जाएगा, राइट? तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? माइनस ऑफ वी एम आई एम साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे निकालना है क्या? एवरेज पावर दैट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय दिस इंडक्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है उसका इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम फॉर कंप्लीट वन साइकिल फ्रॉम 0 to 2 पाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ टोटल पावर कंज्यूम्ड फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जब भी हम एवरेज निकालते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इट विल ऑलवेज कम टू बी इक्वल टू 0। हमेशा ही 0 आएगा क्योंकि दिस इज मल्टीप्लाइड विद, देखो वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, ये सारे कांस्टेंट तो हैं बट दीज आर मल्टीप्लाइड विद साइनोसॉइडल टर्म। ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई 2 ओमेगा टी। अब ये ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी बन गई पूरी की पूरी। अब एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 to 2 पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो हेंस वी कैन से पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर इंडक्टर in a power consumed in a purely inductive circuit is always equal to 0। और हमने ये डिराइव भी कर लिया, राइट? अब हम पावर की वेव शेप अगर बना के देखते हैं, वहां से भी हमें पता लगेगा कि हमारे पास पावर जो कंज्यूम हुई है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सी देखो, अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं करंट को, कहीं ना कहीं से पीछे से भी आ रहा था क्योंकि अगर हम इसको साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, देखो 1/4 साइकिल में क्या है? वोल्टेज इज पॉजिटिव वेयर एज करंट इज नेगेटिव। अब अगर मैं पावर निकालूं तो पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। सो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, द टर्म जो पावर आएगी दैट विल बी नेगेटिव। तो ये मेरी पावर की वेव शेप आ गई, राइट? तो मैंने ये पावर की वेव शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी, राइट? अब फ्रॉम पाई बाय 2 to पाई पावर क्या होगी? देखो वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो पावर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, राइट? ये पावर की वेव शेप आ गई P, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं, देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव है बट वोल्टेज नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी? इट विल बी अगेन नेगेटिव, राइट? चलिए अब लास्ट वाले 1/4 साइकिल में वोल्टेज इज नेगेटिव, करंट इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो पावर कम आउट टू बी पॉजिटिव, राइट? देखो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ वोल्टेज, उसमें पावर ने 2 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, राइट? अब इसके एवरेज पावर अगर हम देखते हैं, देखो इट विल कम आउट टू बी 0 क्योंकि जितनी बार उसने पॉजिटिव वैल्यूज अटेन की हैं उतनी बार उसने नेगेटिव वैल्यूज भी अटेन की हैं। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्लस सम ऑफ नेगेटिव वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट विल कम आउट टू बी 0। सो वी कैन से दैट in purely inductive circuit, when V is equal to Vm sin of omega t, current
is given by Im sine of omega t minus pi by 2, or we can say current lags the voltage by exactly 90 degree. 90 degree से एक तो lag करेगा, and the average power consumed by the inductive circuit is always equal to 0. अगर मैं इनके फेजर्स बनाती हूँ, देखो, इफ लेट दिस विल द फेजर ऑफ वोल्टेज V, ठीक है, तो करंट का फेजर कहाँ बनेगा, लैग करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, ठीक है, और ये होगा हमारे पास करंट का फेजर, और ये एग्जैक्टली कितना है, 90 डिग्री, राइट. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. It is very यूजफुल. Please like and subscribe my channel. Thank you.